تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے ان دونوں کی گاڑی ایک 2 منزلہ گھر کے سامنے آ رکی۔ یہ سفر دونوں کا ہی خاموشی کی نظر ہو گیا۔ التمش کو غصہ تھا کہ اس کے اتنی محبت سے لائے گئے گفٹ کی قدر نہ کرتے ہوئے اس کی بیوی نے اسے نوکرانی کے حوالے کر دیا۔ اس کے جذباتوں کی قدر نہ بھی کرتی تو کوئی غم نہیں تھا، مگر اس نے ان کے درمیان رشتے کا مان بھی نہ رکھا تھا۔ کسی سے سنا تھا کہ ایک عورت کے لیے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ اس دنیا کے سارے تحفوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اسے۔ یہ ایک ایسی خوبصورت یادگار ہوتی ہے جو وہ ساری زندگی سنبھال کر رکھتی ہے، مگر وفا نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا۔ گاڑی رکی، وہ خاموشی سے اترا اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈال کر اس کے دماغ کی نسیں دوبارہ پھولنے لگی۔ کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ سخت لہجے میں جب وہ مخاطب ہوا تو وفا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے تو التمش کا جی چاہا کہ کھینچ کر 2 تھپڑ لگائے اس بے وقوف لڑکی کو۔ ایک تو غلطی کی اور اوپر سے ایسے ظاہر کر رہی ہے کہ جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ بہرحال اس وقت وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، سو ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غصے کو پس پشت ڈالا۔ جب میرے ساتھ کہیں بھی آیا جایا کرو تو ہمیشہ مسکرایا کرو۔ اگر میرے دوست یا فیملی میں سے کسی کو بھی اس بات کا ذرا سا بھی شک گزرا کہ آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجا کر ہوا کے دوش پر ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے وہ دوبارہ سیٹ کرنے لگا، جبکہ وفا اس کے اس انداز پر ہکا بکا رہ گئی۔ سمجھ نہیں آیا کہ اتنی خوبصورت مسکراہٹ اور مٹھاس بھرے لہجے میں وہ اسے سمجھا رہا تھا یا دھمکا رہا تھا۔ جو بھی تھا، مگر اس وقت بھلائی اسی میں تھی کہ وہ مسکرائے۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ التمش نے ایک نظر معصومیت کی حدیں پار کرتی خوبصورت مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ التمش نے ایک نظر معصومیت کی حدیں پار کرتی ہوئی خوبصورت مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ اپنی زندگی کا سارا تجربہ مجتمع کر کے جانچنے پر بھی وہ اس کی مسکراہٹ میں کوئی بناوٹی پن نہ ڈھونڈ پایا۔ عجیب لڑکی تھی جس کا بیہیویئر اس کے آج تک کے تجربے پر پانی پھیر دیتا تھا۔ آنکھوں کے اشارے سے اپنے داہنے بازو کی طرف اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہی وفا ایسے اس کے بازو پر جھپٹا مار کر بتیسی کی نمائش کرنے لگی کہ ایک پل کے لیے التمش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آن بکھری۔ ڈرامہ اپنی طبیعت سے ہٹ کر آج شاید پہلی بار اس نے دل ہی دل میں کسی لڑکی کا نام بگاڑا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر بنا رکاوٹ کے اندر جانے دیا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ کر وفا کے ساتھ ساتھ التمش کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سامان سے بھرے کارٹن ویسے ہی پیک پڑے تھے، ہر چیز میں بے ترتیبی پھیلی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پڑی میز پر کھانے کے شاپر، پلیٹ اور چمچ ویسے کے ویسے پڑے تھے، اور صوفے پر ایک نوجوان بلو جینز اور بلیک بنیان میں آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ وفا نے حیرت سے سارا منظر دیکھ کر التمش کی طرف دیکھا۔ بدلے میں اس نے بھی ایک افسوس بھری نظر صوفے پر ڈال کر وفا کی طرف دیکھا۔ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ صوفے پر بے خبر لیٹے اس انسان کی طرف بڑھا۔ ہاشم، ہاشم! 1-2 آواز دینے پر بھی جب وہ نہیں اٹھا تو اس نے اس کو دوبارہ سے آواز دی۔ جب وہ پھر بھی نہ اٹھا تو التمش نے ٹیبل پر رکھا آدھا گلاس پانی کا اٹھا کر اس پر اچھال دیا۔ اوئے کون ہے؟ وہ یکدم اچھل کر اٹھا۔ سرخ ہوتی آنکھیں نیند کے خمار کی گواہی دے رہی تھیں۔ ارے التمش، تم! اپنے سامنے بچپن کے دوست کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، مگر جب نظر چند قدم کی دوری پر کھڑی صنف نازک پر پڑی تو دماغ میں پہلا خیال شرٹ پہننے کا آیا۔ نظروں نے تیزی سے شرٹ ٹٹولنا شروع کی اور 1 منٹ سے بھی کم عرصہ میں وہ شرٹ پہن چکا تھا۔ سوری یار، بس کل ہی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، سامان کی سیٹنگ کرنی تھی، مگر رات میری نائٹ ڈیوٹی لگ گئی اور یہ سارا سامان یوں ہی بکھرا رہا۔ وہ شاید بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ التمش نے بھی اس کے ساتھ سارا پھیلاوا سمیٹنے میں مدد کی۔ وہ چپ چاپ کھڑی ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ میں ہی وہ جگہ دیکھنے اور بیٹھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ بیٹھ یار، بھابھی آپ بھی بیٹھیں۔ التمش سے اس کا لہجہ دوستانہ جبکہ وفا کے ساتھ مؤدبانہ تھا۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے قریب التمش بھی بیٹھ گیا، جو کب سے خاموش کھڑا صرف ہاشم کو گھور رہا تھا۔ اب صوفے پر بیٹھ کر بھی اس کا یہی عمل جاری تھا۔ اتنی گہری چوٹ کیسے لگی تجھے؟ التمش کے سوال پر ہاشم کے ساتھ ساتھ وفا بھی حیران ہوئی تھی۔ لاکھ چھپانے کے باوجود بھی التمش کی زیرک نگاہوں سے اس کی چوٹ چھپی نہ رہ سکی۔ پھر اچانک ہاشم نے ہنس کر اپنے تاثرات چھپائے۔ ارے یار، تم تو جانتے ہو پولیس کی نوکری میں ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی رہتی ہیں۔ کل رات ایک گنڈے سے مڈبھیڑ ہو گئی تھی،
उसी वजह से चोट आई, दवाई और पेन किलर ली थी, इसी वजह से इतनी गहरी नींद सोया था, वरना पुलिस वालों की नींद इतनी पक्की नहीं होती। उसने हंसकर तफसील दी तो अल्तमश और वफा दोनों ने इस बात में सर हिलाया। वैसे भाभी बहुत खूबसूरत लाए हो, हमेशा की तरह तुम्हारी पसंद नायाब है। एक नज़र वफा की तरफ देखकर वो अल्तमश की पसंद की दाद देने लगा। अल्तमश रॉयज़ादा को हमेशा से ही ख़ास चीज़ें पसंद आती हैं। वफा के खूबसूरत चेहरे और नाजुक से सरापे को निगाहों में कैद करके वो बिना हाशिम की तरफ देखे बोला तो कुछ पल के लिए वो भी कंफ्यूज हो गई। अच्छा, आप दोनों 5 मिनट बैठे, मैं आप दोनों के लिए खाने पीने के लिए कुछ लाता हूँ। वो उठकर जाने लगा कि अल्तमश की आवाज़ पर फ़ौरन रुका। अरे रुको हाशिम, खाना कुछ नहीं है, बस चाय पिला दो। मैं तुम्हारी भाभी को सुबह सुबह बिना नाश्ता करवाए लेकर आया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पिलाने के लिए। ओह खुदा अल्तमश, यार तू भी ना। ये खबर सुनकर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। अंदाज में और ज़्यादा तेज़ी आ गई। आप यहीं पर बैठे, मैं उसकी मदद करवा कर आता हूँ, उसके बाजू में चोट लगी है। वो उसे वहीं सोफे पर बिठाकर खुद हाशिम की मदद करवाने किचन की तरफ चल दिया। ये बात भी वफा के लिए हैरान कुन थी कि अल्तमश रॉयज़ादा, जिसके घर का चम्मच भी नौकर उठाकर इधर से उधर रखते थे, वो किचन में अपने दोस्त की हेल्प करवाने गया है। शायद उनकी दोस्ती बहुत गहरी है। उसका दिमाग उस सारे नज़ारे में बस यही अखज़ कर पाया था। बाकी सारा सामान तो वैसे ही पैकिंग में था, मगर एक बॉक्स खुला था। शायद इसमें रोज़मर्रा का ज़रूरत का सामान होगा। फारिग बैठकर ड्राइंग रूम का जायज़ा लेते हुए उसकी नज़र दीवार पर अटकी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें हाशिम के साथ एक मासूम सी लड़की खड़ी थी। ये मेरी बहन है। वो उस लड़की को देखने में इस कदर खोई थी कि हाशिम की आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी। वो दोनों चाय बनाकर ले आए थे। अल्तमश ने भी उसकी नज़रों के जाविये में देखा। कहाँ हैं ये? अब इस दुनिया में नहीं हैं। ओह आई एम सॉरी। वफा के सवाल पर वो थोड़ा उदास हुआ। अल्तमश ने चाय का कप उसे थमाया, खुद भी उसके बराबर आन बैठा। क्या हुआ था इन्हें? ये तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। वफा को जैसे यकीन ही ना आया। एक्सीडेंट हुआ था। हाशिम के चेहरे पर सर तासुरात उभरे और वैसे ही सर तासुरात से उसने अल्तमश की तरफ देखा, जो सोफे पर अपने लिए कुशन सेट कर रहा था। अल्तमश पर तो हाशिम के ये तासुरात जाहिर ना हो सके, मगर वफा की नज़रों से ये तासुरात किसी तौर छुपे ना रह सके। अचानक ही वो वफा के सवालों को इग्नोर कर अल्तमश की तरफ खुशदिली से मुतवज्जो हुआ। वो दोनों ही न जाने कौन कौन सी बातें कर रहे थे, मगर वफा की नज़रें उस तस्वीर पर जैसे जम सी गई थी। उस लड़की की तस्वीर से ज़्यादा उसे वो लॉकेट अट्रैक्ट कर रहा था जो उस तस्वीर में उस लड़की ने अपने गले में पहना था। ये लॉकेट उसने कहीं और भी देखा था, मगर कहाँ? ये फिलवक्त तो उसे याद नहीं आ रहा था। अच्छा, अब हम चलते हैं। आज शाम जितना भी ज़रूरी काम हो उसे पसे पुश डालकर तुमने मेरे वलीमे पर आना है। अल्तमश के हुक्मिया अंदाज पर वो ताबेदारी से सर झुका गया। चंद और बातों के बाद वो दोनों वहाँ से निकल आए, मगर वफा का दिमाग हाशिम की नज़रों, उन तासुरात और उस लड़की के गले में पहने लॉकेट में ही अटक गया था। हाय अल्लाह, ये मेरे बच्चों को क्या हो गया? ये उसवा थी, अरशद का मान, जिसका दिल अरशद की जख्मी हालत पर दहल उठा था। क्या हुआ? फातिमा और दानीन भी उसवा की पुकार पर चले आए। माइजा और मायरा भी अपने भाई की हालत देखकर परेशान हो गए, जिसके सर और बाजू से खून निकल रहा था। अल्तमश और वफा भी उस वक्त रोशन विला में दाखिल हुए और उनकी नज़र भी अरशद की हालत पर पड़ी। ये क्या हो गया? वफा की आवाज़ कपकपाई थी। अल्तमश ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू साफ चमकने लगे थे। उसवा ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल की। माइजा तेज़ी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। फातिमा ने नरम तासुरात से वफा को नॉर्मल रहने की तलकीन की। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अभी वो लोग अरशद की मरहम पट्टी करके फारिग नहीं हुए थे कि उस वक्त हादी भी घर में दाखिल हुआ, जिसकी हालत भी अरशद की हालत से कुछ मुख्तलिफ ना थी। अपने बेटे की हालत पर दानीन का तो दिमाग भग से उड़ गया। डॉक्टर तो आ ही गया था, लगे हाथों हादी की भी मरहम पट्टी कर डाली, मगर ये हालात अल्तमश की समझ से परे थे। आज तक ऐसा नहीं हुआ। रॉयज़ादा फैमिली पर नज़र डालने से पहले भी लोग 1000 बार सोचते थे, लेकिन आज ये तारीख कैसे तब्दील हो गई? या यूं कहना मुनासिब, ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिसने रॉयज़ादा फैमिली के बेटों पर हाथ उठाने की हिमाकत कर डाली? अल्तमश, अभी के अभी DIG को फ़ोन लगवाओ। मेरे बेटे की ऐसी हालत करने वाले को मैं सलाखों के पीछे सड़ता हुआ देखना चाहती हूँ। हादी के सरहाने बैठी दानीन यकदम चीखी थी। उसवा के तासुरात और इरादे भी दानीन से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ ना थे। उसके बेटे अरशद को भी किसी ने ज़ख्मी किया था। आप फिक्र ना करें फुप्पो जानी, ये जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं।
अल्तमश उन्हें तसल्ली देकर मोबाइल पर DIG को कॉल मिला था कमरे से बाहर चला गया। वफा ने भी खामोशी से चले जाने का सोचा। दानी, मुझे समझ नहीं आता आखिर ऐसा करने की हिम्मत कर कौन सकता है। फातिमा ने अपनी परेशानी का इजहार किया तो दानीन ने कहर बरसाती नज़रों से वफा की जानिब देखा। ऐसा आज तक इसलिए नहीं हुआ फातिमा क्योंकि आज से पहले किसी के मनहूस कदम जो इस घर में नहीं पड़े थे। जैसे ही ये लड़की इस घर में आई है, इस घर के 2 बेटों का खून बह गया है। मैं पहले ही बोल रही थी कि ये रिश्ता मत करो। दानीन को तो वफा को तंज का निशाना बनाने का जैसे मौका मिल गया था। वफा के दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम वहीं जम गए थे। बस करे माँ, इसमें भला भाभी की क्या गलती है? और ये कदीम ज़माने वाली जाहिलाना ओहाम परस्ती ना आज तक हम लोगों ने पाली है और ना ही अब ज़रूरत है। हादी चूँकि अपनी माँ की फितरत से वाकिफ़ था, सो रिश्तों में खटास डालने वाले शुबहात पर फ़ौरन से पहले लगाम लगाना ज़रूरी समझा। हाँ दानी, हादी बिल्कुल सही बोल रहा है। इसमें हमारी बहू का क्या कसूर है? उस बेचारी को तो इन सब मामलात के मुतालिक कुछ मालूम भी नहीं है। फातिमा ने भी वफा की हिमायत की। उन सब ने दानीन को तो खामोश करवा दिया था, मगर वफा का दिल बोझल सा हो गया। इसीलिए खामोशी से भारी कदम उठाती वो वापस अल्तमश के कमरे में आ गई। वलीमे का फंक्शन शहर के सबसे बड़े गार्डन में तय पाया था। सुर्ख और सुनहरी मखमली कालीन और पर्दे बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी रोशनियों, मसनूई और कुदरती फूलों से की गई सजावट बहुत खूबसूरत और दिल फरेब मंजर पेश कर रही थी। हल्के पिंक कलर के ड्रेस में ब्यूटिशियन के नफासत से किए गए मेकअप के बाइस वो कोई मोम की गुड़िया लग रही थी। हर नज़र उस पर आकर ठहर जाती। पहले तो चंद औरतों ने स्टेटस के फ़र्क को मुद्दा बनाकर रंग रंगीली बातें बनाई, मगर जब उसके रंग रूप को देखा तो सबकी ज़ुबानों पर अपने आप ताले लग गए। तब किसी ने अल्तमश और वफा की जोड़ी को चांद और सूरज की जोड़ी का लक़ब दे डाला। हाशिम भी उस वलीमे के फंक्शन में शामिल हुआ था, मगर माइज़ा की तरफ उसका रुझाव वफा की आंखों से पोशीदा न रह सका। खामोशी से स्टेज पर बैठी वो एक एक मेहमान की हरकतों सकनात नोट कर रही थी। हालांकि बगल में उसका शोहर भी विराजमान था, मगर वो तो ऐसे दिखा रही थी जैसे यहाँ उसके अलावा और कोई मौजूद ही ना हो। पल पल उसके मनमोहने सरापे को देख देख कर अल्तमश बमुश्किल अपने जज्बात पर कंट्रोल कर पा रहा था। मिसेस रॉयज़ादा, जितना इग्नोर करना है कर लो, अभी तो सुबह वाला बदला भी बाकी है। एक बार कमरे में चलो, फिर सारे हिसाब बेबाक होंगे। उसकी किसी बात को खातिर में ना लाकर उसने नाक से मक्खी उड़ाई। नज़रें मुसलसल हाशिम पर जमी थी, जिसके सुबह वाले तासुरात की वजह जानने के लिए वो बेताब थी, मगर वो माइज़ा के करीब से हटने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद यूं ही उसकी नज़र दोबारा सीढ़ियों से उतरती माइज़ा की तरफ उठी और तभी अचानक उसके पीछे पीछे हाशिम भी आया। नीचे उतरने में बस 4 सीढ़ियाँ ही बाकी थीं कि हाशिम ने अपना पाँव माइज़ा के पैरों के दरमियान अटकाया और वो सीधा फर्श पर औंधे मुंह जा गिरी। वफा की आंखों ने यह मंजर बखूबी नोट किया। मारे हैरत के उसकी आंखें उबलने को हो गईं। अभी तक तो ऐसे लग रहा था कि वो माइज़ा को पसंद करता होगा ज़रूर, मगर ये सारा मंजर तो कुछ और ही गवाही दे रहा था। ये रॉयज़ादा फैमिली का दोस्त है या दुश्मन? दिमाग में पहला सवाल यही उभरा। खुद ही माइज़ा को गिराकर अब उसका हमदर्द बना बैठा था। सारे मेहमान एक जगह मुज्तमे हो गए थे। अल्तमश भी उठकर माइज़ा के करीब जा चुका था और वो खामोशी से बैठी हर पहलू पर गौर व फिक्र कर रही थी।